नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आज वर्ल्ड एसएमई डे है और इस खास मौके पर TV9 नेटवर्क लेकर आया है वर्ल्ड एसएमई डे कॉन्क्लेव। स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्क्लेव, न्यू नॉर्मल में न्यू टेक ड्रिवन इनिशिएटिव के साथ ये खास कॉन्क्लेव जो अपनी तरह का पहला ऐसा कॉन्क्लेव है। एसएमईज देश की असल बैकबोन, देश की इकोनॉमी की असल बैकबोन है, लेकिन कोरोना महामारी ने काफी कुछ बदला है। एसएमईज भी इससे अछूते नहीं हैं। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद दुनिया भर में बिजनेस करने के तौर तरीके भी बदल गए। कोरोना के बाद जिस तरह से बिजनेस के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, ऐसे में खुद को बदलना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि आज हमें सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों से भी मुकाबला करना है। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जुड़ेंगे और एसएमई सेक्टर के कई दिग्गज भी आज इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होंगे। महेंद्र शाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वी ट्रांस इंडिया के, आशीष चौहान साहब MD एंड CEO BSE जुड़ रहे हैं, आदित्य शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी ट्रांस इंडिया, विनीत अग्रवाल साहब प्रेसिडेंट हैं एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम, संजय अग्रवाल चेयरमैन एंड CEO पैरामाउंट केबल्स एंड प्रेसिडेंट PhD चैम्बर्स, श्रीकांत सोमानी चेयरमैन CII नेशनल MSME काउंसिल एंड CMD सोमानी सेरेमिक्स, राजीव कुमार पाठक साहब बिजनेस हेड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, संजय काटकर जॉइंट MD एंड CTO क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रौनक शाह साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी ट्रांस इंडिया के, और हमारे साथ सूरज पांडे जी भी होंगे, MD एंड फाउंडर ACME इंडिया हैं। वर्ल्ड एसएमई डे कॉन्क्लेव में ओपनिंग एड्रेस के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा महेंद्र शाह जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वी ट्रांस इंडिया के। ऑनरेबल Minister Sri Nitin Gadkari ji, TV9 Group CEO Sri Mr. Barun Das, eminent participants and dear friends. We all know the importance of MSME segment, the contribution it makes to our economy and the key role it plays in the nation's growth. Their role is also undeniable in achieving the Honorable Prime Minister's dream of 5 trillion economy. We at VTrans have always been compassionate to this segment. We have recently been associated with an eminent industry body and created a series of sessions called MSME Assist, Steps to Excel, for supporting MSME segment. Thank you all for being part of this event and I wish you all the very best for the event. और एसएमई सेक्टर को फोकस में रखकर TV9 नेटवर्क ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम आगे क्या करने वाले हैं, इसे विस्तार से बताने के लिए मैं TV9 नेटवर्क के CEO वरुण दास जी को इनवाइट यहां करना चाहूंगा। थैंक यू दिनेश। Right at the outset, I warmly welcome our chief guest, Honorable Shri Nitin Gadkari ji. To me, the MSME sector is the lever that will help India achieve its true economic prowess. We are extremely glad to see that you have been driving the positive change even in adverse situation caused by the onset of pandemic. India, according to a UNICEF report, will have an estimated 31 crore secondary school graduates by 2030 ready to join the job markets. Will we be able to create that many jobs? What will happen to these educated youths then? The only way out for us is that we will have to convert job seekers into job providers. TV9, the largest news network of our country, will be keen to play our role in this. As part of powering this faculty, we have taken our first step to bring about financial inclusions at the grassroots level. TV9 network has launched Money9, India's first multilingual personal finance platform, earlier this year. It's a modest effort to drive the bottom of the pyramid change. Recognizing the power of small business in India's language market is an imperative. As a media platform, we are committed to the idea to discover such entrepreneurial channel. I'm happy to announce the launch of nationwide regional startup awards, which will be conducted across all regional language speaking states in the country. I would like to take this opportunity to reiterate TV9 Network's resolve to assist you and the government in its determination to build globally competitive small and medium business across all verticals. I request you to see us as a facilitator in this great national resolve to build a truly empowered Atmanirbhar Bharat. Thank you very much, sir, for joining us. MSMEs को कैसे वहां पर ले जाना है जहां वो अपने आप को पूरी तरह से एम्पावर्ड पाएं,
ये अगर अभी मुश्किल दिख रहा है तो कैसे संभव होगा, नितिन सर जानते हैं। लिहाजा नितिन सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस कॉन्क्लेव में, जहां देश के दिग्गज एसएमईज रिप्रेजेंटेटिव्स भी जुड़े हुए हैं, आप बताएं कि अभी क्या स्थिति है और चीजें बेहतर कैसे होंगी। एमएसएमई हमारे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। इसका कारण टोटल हमारे जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। एमएसएमई हमारे विशेष रूप से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है, 48% एक्सपोर्ट होता है एमएसएमई के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 11 करोड़ जॉब अभी तक एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, और ये बेरोजगारी की समस्या अगर हमको सुलझानी होगी तो हमें निश्चित रूप से एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा, मजबूत करना होगा। हम कोविड की परिस्थिति पर मात करके आगे आएंगे, और हम ये टारगेट पकड़ के चल रहे कि जीडीपी ग्रोथ में हम 30 नहीं 40% कंट्रीब्यूट करेंगे, 48% एक्सपोर्ट हम 60% तक लेके जाएंगे, और 11 करोड़ जॉब अब तक क्रिएट किए, 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये संकट, ये परिस्थिति, इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाना, ये सभी स्टेक होल्डर्स के कोऑपरेशन के बिना नहीं होगा। वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसमें इन सब लोगों का सहयोग चाहिए, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। अभी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं उसका मंत्री हूं, हमारा 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है, और मेरा प्रयास है कि करीब 3 साल के अंदर हम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 12 लाख करोड़ की बनाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स, हम इसके साथ साथ स्क्रैपिंग पॉलिसी जो ला रहे हैं, जिसके कारण हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और हम वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। और ये जो जिन लोगों को आपने सब आमंत्रित किया है, इनके सहयोग के बिना, इनके विजन के बिना, इनके इनिशिएटिव के बिना ये सपना नहीं पूरा हो सकता है। आपके चौहान जी है, और मैं चाहता हूँ कि एमएसएमई अब स्टॉक एक्सचेंज में जाए, और एमएसएमई में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो दुबई है, अमेरिका, यूएसए से है, यूरोपियन कंट्रीज से है, डॉलर की तुलना में उनको रिटर्न 2-2.5-3 तक का मिलता है। हमारे एमएसएमई में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसका बैंक टर्नओवर अच्छा है, जिसका एक्सपोर्ट अच्छा है, जिसका इनकम टैक्स के रिटर्न अच्छे हैं, जीएसटी का ठीक है, और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसे एमएसएमई अगर स्टॉक एक्सचेंज से अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगी उनको, तो उनके शेयर की कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टर को भी फायदा होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और एक प्रकार से टेक्नोलॉजी भी आएंगी वर्ल्ड से। यानी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दोनों अगर हमारे एमएसएमई में बड़े प्रमाण पर आएगी तो और फायदा होगा, और हम इन सबको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके सहयोग से हम निश्चित रूप से इस तस्वीर को बदल सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, और आपने ये बहुमूल्य विचार एसएमईज को होप, जो हमारी होप है, उनको होप देने का काम आपने किया। बहुत शुक्रिया सर। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वरुण सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जब कोई एसएमई अपने कारोबार को बढ़ाने की सोचता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है फंड्स की। व्हाट आर द इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग एसएमईज, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चौहान साहब, एमडी एंड सीईओ बीएसई। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने पर काफी जोर दे रही है, जिसमें एसएमईज का रोल काफी अहम रहने वाला है। ऐसे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे एसएमईज को कैपिटल रेज करने में मदद कर सकते हैं? एसएमईज एक तरह से देखें तो सबसे ज्यादा ट्रबल्ड रहते हैं फाइनेंस के बारे में, क्योंकि जो कैपेसिटी चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए फाइनेंस के लिए, सीएफओ रखना है, बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट को फुल टाइम रख नहीं सकते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर है यूजुअली वही लोग खुद ही फाइनेंस मैनेज करते हैं। बीएसई में एसएमई प्लेटफॉर्म है, जहां पर करीब 336 कंपनियों ने ऑलरेडी 3500 करोड़ रुपया मार्केट से जमा किया है। उसके बाद उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है 27,000 करोड़ रुपया हो गया है पिछले 7 सालों में। तो स्टॉक मार्केट के जरिए आप अपना इक्विटी रेज कर सकते हो, उसके सामने फिर आप बैंक से ऋण भी ले सकते हो, और आप 2-3 करोड़ रुपया भी मार्केट से कर सकते हो, निकाल सकते हो, 5-10 करोड़ भी निकाल सकते हो, 50 करोड़ भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन
आपका कितना साइज है। और अब मैं एक बेहद खास मेहमान को बुलाता हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी ट्रांस इंडिया। आदित्य शाह साहब, पिछले 6 दशक से आप इस व्यवसाय में हैं। देश में इस फील्ड में अभी जो तब्दीलियां हुई हैं उनको आपने, अपनी कंपनी ने बहुत करीब से देखा है। इसमें क्या क्या आपने देखा, शुरुआत से अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, ये ज़रा इस जर्नी से अगर हम आप हमें क्विकली ले जाएं। हमारी जर्नी एज अ कंपनी अगर बात करें वी ट्रांस, तो बहुत ही छोटे पाए पे हुई थी 60 साल पहले। हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बेसिकली 2 सेक्टर के बीच में हम लोग ऑपरेट करते थे, विच इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। फ्रॉम द लास्ट 60 इयर्स हम देखें तो काफी चीजें चेंज हुई हैं, नॉट ओनली हमारी कंपनी में बट ये पूरी इंडस्ट्री में भी। एंड उसी के साथ पूरी एमएसएमई की भी स्टोरी हम लोग नरेट कर सकते हैं, बिकॉज उन्हीं की सपोर्ट से हम लोग इतनी बड़ी कॉरपोरेशन आज बन पाए हैं। हम लोग लास्ट 20 साल में हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% कंपाउंडेड रही है। हम लोग ऑलमोस्ट 2000 ईयर में हमारा टर्नओवर ऑलमोस्ट 19 करोड़ हुआ करता था। आज हम लोग 1000 करोड़ की कंपनी बनी है। 750 ब्रांचेज हैं हमारी अक्रॉस द कंट्री। ऑलमोस्ट 1300 ट्रक हम चलाते हैं। सो हमारा एग्जांपल कुड बी वेरी रेलेवेंट फॉर एनी एमएसएमई इन द कंट्री, दैट फ्रॉम एक छोटे स्केल से हम लोग कैसे एक लार्ज स्केल पे बन सकते हैं, अगर सिस्टमैटिकली हम लोग हमारी कैपेबिलिटीज को एनहांस करते जाएं। अगर हमने स्ट्रेंथ की बात की है तो हमने वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई की हैं, हमने अपॉर्चुनिटीज़ के संदर्भ में भी मंत्री महोदय से समझा कि क्या हैं, थ्रेट्स कहाँ कहाँ हैं ये भी हमने समझा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आइए कुछ चर्चा करें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हम अभी विश्व में 63वें पायदान पे हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी रैंकिंग में ग्रेजुअली सुधार होगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ मैं चर्चा करूंगा वो हैं विनीत अग्रवाल साहब, प्रेसिडेंट हैं एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम, संजय अग्रवाल, चेयरमैन एंड सीईओ पैरामाउंट केबल्स एंड प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर्स, श्रीकांत सोमानी, चेयरमैन सीआईआई नेशनल एमएसएमई काउंसिल एंड सीएमडी सोमानी सेरेमिक्स, राजीव कुमार पाठक साहब, बिजनेस हेड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, संजय काटकर, ज्वाइंट एमडी एंड सीटीओ क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में क्या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस अपना रोल एसएमईज के लिए निभा पा रहे हैं? सबसे पहले विनीत साहब से ये समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज हम सब जानते हैं कि हर बड़ी कंपनी पहले एक एमएसएमई थी, तो वैसे ही ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि फॉर्मलाइजेशन हो, और उसको मदद करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारे देश में ये बहुत नेसेसरी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कई कंपोनेंट्स हैं, लैंड है, लेबर है, लॉजिस्टिक्स है, कैपिटल है। ये सब में जितना ईज होगा काम करने में, उसको यूज करने में, उतना ही हम देखेंगे कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो से स्मॉल से मीडियम से लार्ज एंटरप्राइज बन सकती है। एक जो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया है वो है जीएसटी। अब जीएसटी के कारण वो कहीं भी बेच सकता है, उसके लिए वन नेशन वन मार्केट हो गया। अब धीरे धीरे विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसके लिए पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन सकता है। और अब मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूं, संजय अग्रवाल जी। आपको लगता है कि एसएमईज के लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, जो पैकेजेस अनाउंस कर रही है, उसका रियल टाइम बेनिफिट क्या मिल रहा है एसएमई सेक्टर को? एमएसएमई सेक्टर के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा पिछले पैंडेमिक के टाइम, आत्मनिर्भर भारत 1 to 5 स्कीम्स में, दे आर ऑल वेरी लॉडेबल। बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं जिनका काफी हद तक काफी बड़ा फायदा हुआ। सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक आया है, इसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो इमीडिएटली जरूरत है सरकार को देखने की। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम ही थी, 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अनाउंस किए थे, कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं था, बहुत बड़ा स्टेप था। अभी इकोनॉमी को एक
बड़े स्टिमुलस की जरूरत है। जिस तरह एक स्टिमुलस करीबन 20 लाख करोड़ से ज्यादा का सरकार ने पिछले साल दिया। उम्मीद करता हूं पॉलिसी मेकर्स इसे सुन रहे होंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीकांत सोमानी जी को। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बड़ा सरकार इसको बढ़ावा देने के संदर्भ में बात कह रही थी और आत्मनिर्भरता को अगर अचीव करना है, सेल्फ रिलायंट होना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने के बाद क्या ये एक टाइट रोप वॉक हो गया, ये चैलेंज बढ़ गया है क्या? कि जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी हैं, आज एमएसएमई की कॉस्ट जो है वो 30% हायर हो गई फ्रॉम लास्ट ईयर। और ये एक चिंताजनक चीज है। दो पहलू है देखने के एमएसएमई की। एक तो ये है कि अभी क्या करना है और एक ये है कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक जो वर्किंग एनवायरनमेंट है एमएसएमई वो अभी कंड्यूसिव आज भी नहीं है। और ये आज जो वर्किंग एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी बाइंग है, ये प्रॉब्लम है। लेबर लॉज का प्रॉब्लम, ट्रेडिंग जो आज एक्सेस बॉर्डर्स बहुत अच्छा किए पर इसको ओपन करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉज के अंदर प्रॉब्लम्स, इंस्पेक्टर राज आज भी है। तो हम ये यदि चाहें कि हमारी एमएसएमई बढ़े तो इन चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं राजीव कुमार पाठक साहब। क्योंकि लिक्विड स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है इस समय, इसको हैंडल करने के लिए किस तरीके से बैंक मदद कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न, बैंक्स के पास लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के डेट में। नाउ कमिंग टू द एमएसएमई सेक्टर, ब्रॉडर लेवल पे बोलूं अगर एमएसएमई सेक्टर को, तो इनफॉर्मल सेगमेंट जहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पूरे ट्रांजेक्शन के काफी कम होते हैं, एक सेमी फॉर्मल सेगमेंट जहाँ पे सर्टेन डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और एक फॉर्मल कैटेगरी में डालें जो कि मोस्टली हमारे हायर एंड के स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। सो बैंकिंग सेक्टर को भी एक ये सेटअप बिल्डअप करना पड़ेगा कि मैं किस सेगमेंट को टारगेट करते हुए उस अप्रेजल मैकेनिज्म को डेवलप करूं। और हम सब जानते हैं कि अब जबकि डिजिटाइजेशन एक अनिवार्यता हो गई है, कंपल्शन हो गया है, वैसे में साइबर फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है, एसएमईज क्या कर सकते हैं खुद को इस तरीके के चैलेंजेस से बचाने के लिए? संजय काटकर साहब को अब आमंत्रित करता हूं। हमने जैसे डिजिटाइजेशन किया है उसकी वजह से एमएसएमईज को काफी हद तक पेंडेमिक की सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत कुछ काम करने को या बिजनेस करने को मिला, कारण क्योंकि हम डिजिटल गए, हम रिमोट कस्टमर्स के पास जाने लगे, हम ऑनलाइन बिजनेस करने लगे, तो इसका फायदा जरूर हुआ है। साइबर क्रिमिनल्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई और इसका इम्पैक्ट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को काफी होने लगा। बहुत सारी जगह पे तो ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो गए, डे टू डे एक्टिविटीज कुछ नहीं हो पा रही थी, अभी भी वो कम नहीं हुई है। तो इसको मैं इस तरह से बोलूंगा कि अगर एसएमईज को इनसे बचना है तो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी सीरियसली लेनी पड़ेगी। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा आप सभी लोगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। ये कमाल का एनलाइटनिंग सेशन था। मैं आप सभी स्पीकर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी हम क्योंकि चर्चा कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग के मामले में और उसमें लॉजिस्टिक्स एक हिस्सा बनाता है, ये अगला अहम पैनल डिस्कशन है जिसको अब हम शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे एक बार फिर से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ रौनक शाह साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीट्रांस इंडिया के, और हमारे साथ सूरज पांडे जी भी होंगे जो कि एमडी एंड फाउंडर एसीएमई इंडिया हैं। सबसे पहले रौनक शाह साहब, आपको आमंत्रित करता हूं मैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि लॉजिस्टिक्स में आपने किन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया? हमारे देश में लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में जो 10% ओवर एंड अबव दिखाई देता है, इसके पीछे वजह क्या है? आपसे टोटली अग्री करता हूं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया इज क्वाइट हाई कंपेयर्ड टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की हम बात करें तो इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टू जीडीपी इज एट 13 to 14%, जो एक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी हाई है। अगर हम यूएस या अदर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो यही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टू जीडीपी उनके यहाँ पे 7 to 8% के रेंज में होती है। एंड अभी ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में क्यों हाई है उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स है।
पहला फैक्टर ये है कि हमारा देश एंड हमारे देश की ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रैगमेंटेड है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारा जो रेल रोड का मिक्स है, डेवलप्ड कंट्रीज में उनका रिलायंस ज्यादा होता है रेल ट्रांसपोर्टेशन पे, वेयर इन इंडिया वी आर मोर डिपेंडेंट और रादर वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन रोड फॉर आवर ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा फैक्टर है कि हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है, जो हमारे यहाँ पे स्किल फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो भी एक बहुत ही मॉडेस्ट लेवल का वर्क फोर्स है हमारे इंडस्ट्री में। जब तक वो डायनामिक्स भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो ये इनएफिशिएंसी रहेगी, हमारा कॉस्ट भी कंट्रोल में नहीं आएगा। सो ये सब फैक्टर्स है। सूरज पांडे जी, ज्यादा डिपेंडेंसी रेलवेज पर और रेलवेज में सब्सिडीज को इसको रैशनलाइज करना। जिस तरह से रेलवे बहुत कम समय में एक उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती हैं, उस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट अभी उतना इक्विप नहीं हुआ है उतनी जल्दी से सामान को पहुंचाने के लिए। और जो सोमानी साहब का दूसरा जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, जस्ट इन टाइम का भी कॉन्सेप्ट अगर रेलवे से हम लॉजिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की कोशिश करें तो जस्ट इन टाइम का भी कॉन्सेप्ट बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। आपने देखा ये दोनों ही सेशंस, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हो या लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में, ये दोनों ही बहुत एनलाइटनिंग रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एसएमई सेक्टर्स में काम करने वाले जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, निश्चित रूप से ये कॉन्क्लेव उनके लिए और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। बहुत धन्यवाद आप सबका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।